सामने यहाँ पे Good evening, everybody. Good evening. Oh, there's no energy. Good evening, everybody. Good evening. That's right. CPAA, Cancer Patient Aid Association, welcomes all of you to this fun-filled evening. We're gonna have tons of laughter, music, dance, everything. But just have a little patience and make sure everybody's seated first. Are we good? Yes. Okay. Yep. So, Cancer Patient Aid Association is a registered charitable organization working towards the total management of cancer for the last 50 years. Every year on 22nd September, we celebrate Rose Day to show our love and care for the cancer patients. This year, we complete 25 years of Rose Day, and hence, it's going to be much more bigger and better. Big round of applause. He's not just an actor, but a great human being. Thank you so much, sir, for taking some time out of your busy schedule and coming here. You made the kids' dreams come true, and they're probably going to remember this day for the rest of their lives. Right? Yeah! Yeah! Okay. Last but not the least, there are a lot of players here because of which this day has been possible. Firstly, I would like to thank Dr. Suresh Sundar for giving us all the possible permissions we needed. Without him, we wouldn't have been here. CPAA will always be in gratitude for your constant support. Secondly, Dr. Anil Singhal, the Chief Medical Officer of BST, for permitting us to use the open bus and letting the kids have once in a lifetime experience this time. And lastly, IGI for sponsoring our event. Okay, lots of boring speeches are done. Now time for some fun, right? Yeah. But also, Meloni, I think we forgot the most important person because of which all of us are here present here. Our CEO and Chairman Founder, Mr. Sabru sir. So thank you, sir, for giving us this opportunity. Serve everybody.
और बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सबरू सर। क्या बोलेंगे? ओवर टू यू। Chirag, what do you think we should do now? So, sirs comes first thing for Mr. Arjun Kapoor is to welcome him as our Desi tradition. So we'll have our Aarti. So please can we have the Aarti and we'll do the Nazar Utaro for Arjun sir. So you speak a few words for whatever. I don't know if the mic is working. You know, like mic दिया तो मुझे लगता नहीं वो काम कर रहा है। अच्छा वो record कर। मुझे लगा mic दिया आपने। I thought this is really high fun and technology is gone through the roof and I had no idea. Anyway, good evening ladies and gentlemen. Sunday enjoy कर रहे हो आप लोग? अच्छा मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा संडे है। I'm getting a chance to meet all of you all and spend time with you all. I would like to thank the media कि आप लोग आज के दिन बाहर निकल के आए to support such an important day and such a nice cause. यार मैं क्या कहूँ मुझे सच में नहीं पता because the thing is it's overwhelming for me. मुझे पता है कि मैं यहाँ आने वाला था, मैं पूरी तरह तैयार होके आया था, मैं खुश होके आया था, बहुत सारी चीजें सोची थी दिमाग में। यहाँ आके मैं जैसे कि होता है ना हम एग्जाम में जाते हैं सब भूल जाते हैं एग्जाम के दिन, मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस वक्त मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। पर मैं इतना कहना चाहूँगा इट्स अ very ambitious thought that we can light up an entire ceiling and celebrate this particular day and the fact that you are able to pull it off, the people that are involved और इन बच्चों को वहाँ लेकर जाना और उनको ये नज़ारा दिखाना, I think it's a very big achievement. So a huge round of applause to the people who actually made it possible. साथ ही में आई थिंक आज जब मैं यहाँ आया और मैंने सोचा था कि मैं बच्चों से मिलूंगा, वो शांत होंगे, मुझे देख रहे होंगे, जैसे ही आया आप लोग जिस तरह डांस कर रहे थे, एक्चुअली मैंने बहुत दिनों से डांस नहीं किया था और मेरा मन था कि हम एक्चुअली पूरे दिन डांस ही करते रहे। सो थैंक यू फॉर दैट एनर्जी दैट ऑल ऑफ यू हैव। इट इज वेरी ओवरवेलमिंग। यू नो हम लोग कभी थोड़े बीमार होते हैं तो हमें लगता है यार आज थोड़ा आराम करेंगे। टू सी ऑल ऑफ यू ऑल इन सच हाई स्पिरिट्स, टू सी द फैमिली मेंबर्स हियर, टू सी पीपल स्माइलिंग इन अ रूम लाइक दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं ना कहीं मैं एक तरीके से इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ जहाँ पे मैं जानता हूँ कि कैंसर क्या चीज़ है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज शायद उसके बाद मैं बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इट इज़ द फैमिली, इट इज़ द किड्स, इट इज़ द पीपल, इट इज़ जिसके साथ बीतती है, जिनके ऊपर बीतती है, जितना पॉजिटिव हो सकते हैं लोग और जितना खुश रहने की कोशिश करते हैं लोग, उसी से असर दिखता है। I've lost somebody who was my life, but I know for a fact that fighting this disease is the best we can do and we must continue to do it. And to everybody out here who's taken our time to come and celebrate and be happy and not let it bog you down, I congratulate each one of you. अगर मेरी मुझे टाइम मिलता मैं आप सबको गले मिल के बोलता, I really want to thank all of you because the positivity that is in this room, हम लोग दुनिया घूम के आते हैं और इतनी positivity एक कमरे के अंदर नहीं मिलती। So thank you for having me here. I think I'm overwhelmed by the love of positivity that is flowing in. After some time, so sir इन सब बच्चों को कब से मुझे पीछे पड़े कि मुझे questions पूछने हैं अर्जुन सर को। So sir, if you allow, we have a few questions from the kids. Okay. So Vaibhav, so we start with Vaibhav. Come. Hi, what's your name? मेरा नाम वैभव धनली टोपली। Hi वैभव, मैं अर्जुन कपूर। नहीं आपने पूरा नाम दिया तो मैं भी पूरा नाम। हाँ पूछो। अर्जुन सर, आप इतने फिट कैसे हो? आप क्या खाते हो, क्या पीते हो? दूध पीते हो क्या? मैं हवा खाता हूँ। हमको तो दूध ही पसंद नहीं। हाँ तो दूध? हाँ? आपको दूध पसंद नहीं कि दूध पसंद है? पसंद नहीं। पसंद नहीं है। यार देखो मैं जब आपकी उम्र का था ना, मैं बहुत मोटा था, जैसे कहते हैं ना, मैं बहुत पहले बहुत मोटा, बहुत परेशान था, जैसे वो आप एड्स देखते हैं ना टीवी से, तो मैं पहले बहुत मोटा था। मैं स्कूल में ज़्यादा गेम्स नहीं खेलता था, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करता था, तो
आप तो फिट हो, आप तो चुस्त हो, आप एक्चुअली एक्टिव हो। और मैं कहता हूँ हर बच्चे को, मैं यही उम्मीद करता हूँ या दुआ करता हूँ कि आज के ज़माने में जहाँ पे फ़ोन्स है, जहाँ पे लोग घर पे बैठ के टीवी देखना पसंद करते हैं, अगर बच्चे एक्टिव रहेंगे, आप कुछ भी खाइए, कुछ भी करिए, लेकिन फिट रहने के लिए यू शुड बी एक्टिव। कोई स्पोर्ट आपको अच्छा लगे, क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी या कुछ भी, जो आपका मन करे। मैं बचपन में नहीं खेल पाया था, इसीलिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी थी। फिर जब मैं 18, 19, 20 का हुआ था, तब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आप तो और आपके यहाँ पे जितने बच्चे हैं, जितने दोस्त हैं, उनको बोलिए जो फिट है, जो फिट रहना चाहते हैं, आई वुड से प्ले अ स्पोर्ट। आप एक स्पोर्ट खेलिए, आप एक्टिव रहिए। मेरे ज़माने में, अब बहुत बुजुर्ग साउंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ज़माने में हम लोग बिल्डिंग में नीचे जाके खेला करते थे। होमवर्क जल्दी खत्म करते थे ताकि नीचे सारे बच्चे जाके खेल सके एक साथ। कोई भी स्पोर्ट होता था, बारिश होती थी तो कुछ इंडोर खेलते थे, वरना आउटडोर खेलते थे। पर वो आजकल मैं देखता हूँ थोड़ा कम हो गया। तो आप जितना मौका मिले बाहर जाइए, घूमिए, अपने दोस्तों का समय बताइए, लेकिन एक्टिव रहिए। घर पे बैठ के टीवी देखने के लिए तो पूरा टाइम बचा है, फोन पे गेम खेलने के लिए बहुत टाइम बचा है, लेकिन बाहर जाके खेलने में जो मजा है ना, वो मजा कहीं और नहीं होता। तो फिट रहने के लिए क्या क्या खाना चाहिए क्या खाना चाहिए? नहीं, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कंट्रोल में खाना चाहिए। यार तुम बहुत यंग हो, इतना मत सोचो। जब वो समय आएगा जब लड़कियों को इम्प्रेस करना हो तो बॉडी वॉडी करनी होगी, तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें टिप्स दूंगा। बट सबसे जरूरी बात है, तुम जो भी खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक अच्छा इंसान बनो। अपने आप अच्छी चीजें होंगी तुम्हारे साथ, बट डोंट वरी सो मच। इस उम्र में इफ यू थिंक सो मच, यार अभी क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? ये सब चीजों का स्ट्रेस मत लो, लाइफ एंजॉय करो, और जितना हो सके बाहर घूमो, आउटडोर रहो, अपने आप फिट हो जाओ। थैंक यू। Sir, we have one more. Manish. Hi Manish. My name is Manish Harivansh Maurya. My name is Arjun Kapoor. पूछ अरे क्यों? क्या वो पूछ? क्या पूछने? अच्छा ठीक है, मत मुझसे गले मिल लो, ठीक है? सवाल मत। क्या था सवाल? अच्छा, तो सबको कोशिश करनी पड़ेगी, पर मुझे धक्का क्यों मारना चाहिए? Strong Joe sir. मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ आ गया था, सॉरी थोड़ा लेट आया, पर उसमें मुंबई की ट्रैफिक की गलती है मेरी नहीं नहीं। सर, पर आप इतने स्ट्रांग हो कि हम एक बार ट्राई करना चाहते हैं। आपको धक्का मारने की कोशिश करो। अब मतलब आज औकात पूरी प्रेस के सामने लोगों को पता लग जाएगा कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ। बेशक तुम अकेले करना चाहते हो? नहीं, और लोग। मैं अकेला आपको हिला नहीं सकता सर। नहीं, मैं सोच रहा था तुम ही अकेले करोगे। अकेला आपको हिला नहीं चलो सकता ना ठीक सर। है, आ जाओ, कौन आएगा? बड़े उतार लो तुमने, ये तो साजिश है, प्लान करके रखा है। अरे अच्छा ठीक है, आप जो चाहे कीजिए, लेकिन अपने आप को चोट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? हाँ, nobody should get hurt, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। आप ये सब एक तरफ आ जाओ, सब एक साइड, आप इस तरफ आओ ना, सब एक साइड से, ये साइड है ना बेटा, तो उल्टे साइड से धक्का नहीं मारो। चलो अभी जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तभी मारना चालू करें, ठीक है? और थोड़ा मेरी इज्जत रखना, मेरी फ्रेटर्निटी की पूरी मीडिया आई हुई है, ये जिंदगी भर लोग याद रखेंगे। नहीं, या तो इसके बाद एक्शन पिक्चर मिलेगी या कभी नहीं मिलेगी। कोई तू क्या फोटो शूट कर रहा है? चलो 1 2 3 स्टार्ट। अरे 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 घर तक धक्का लगा, धक्का लगा। आ जाओ, फिर से अभी मैं पूरे दम लगा कोशिश करूंगा, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे पीछे पीछे। अच्छा नीचे हाथ ऊपर रखना, ज्यादा नीचे मत करना। रुको रुको, अरे मैंने 1 2 3 बोला नहीं। चलो तू आ जा, ये विनय पांडे, ये राजेश, आराम से रुको, मैं 1 2 3 ये लाइट, ये अरे लाइट बंद कर। कौन किसका है? ये पीछे से लाइट तू उधर से क्या शूट कर रहा है? मारो उसको। इधर आओ, बोलो, बात बोलते रहे कि उससे बैठ। तू कौन सा नया एंगल ढूंढ रहा है? चलो रेडी?
सबसे छोटा सबसे तो नशा ही नहीं होता। 1 2 ही बोला धक्का मारा मुझे। 1 3 चुप 2 3 चलो बस। अरे माफ कर दो यार। चलो वापिस आ जाओ जगह पे। तो देखो आपके वजह से दर की ठोकरें खा चुका हूँ। हाँ? फोटो चाहिए धक्का मारने के बाद क्या? हाँ नहीं उनको अच्छा ठीक है घुमा सेल्फी चलो ले और शिफ्ट में धक्के खाने एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं सो सर आई थिंक बहुत धक्के खा लिए आपने, एक तो ट्रैफिक में और दूसरे यहाँ पे। सो लास्ट और जो फोटो और वीडियो मिला है लोगों को मतलब जिंदगी भर अब देखना मैं बुजुर्ग बन चुका हूँ मैं तब भी ये देखना पड़ेगा कि धक्के खाए थे मेरे यार। I think sir you always cherish this part of being pushed. So If I have to be pushed around in life, I'd rather be from the kids than from anybody else. True. Okay. So the last you wanted to just say something out of the heart. So just like to say something. Hi, My name is Asmita Marathi. my name is Arjun Kapoor in Hindi, not in Marathi. अर्जुन कपूर सर आप यहाँ आए हम लोग के साथ मजाक मतलब हाँ मदद तुम लोग ने मेरा मजाक बना दिया। टाइम स्पेंड किया आपका हम लोग को बहुत खुशी हुई। Thank you. हम सब के तरफ से आपको थैंक यू। Thank you. बस तुमको धक्का नहीं मारना। हाँ? तुझे गोद में लूँ तू पकड़ ले। पहली बार होगा कि शादी के बिना गोद लेनी है। अभी क्या बोलूं? आज पूरे मीडिया के सामने बच्चा गोद ले लिया। So sir, we have a small cake that we've prepared since you're celebrating 50 years of CPA, 25 years for the Rose Day. So a small celebration that demands for. I think the kids should. So say they'll be along with you. अच्छा। हाँ, but ये अभी काटना है। Just दो पेन
मैम इसकी माँ फुल ये और संजीव बाबा फुल एकदम रहते हैं हमारे सब फोटो निकाल रहे सगळे मोबाईल घेऊन मीडिया पर्सन्स के लिए एक कार रखी गई है बाहर जो आपको जेटी तक छोड़ के प्रोग्राम के बाद जेटी से यहाँ पे ताज वापस लाई जाएगी. So there's a vehicle available for the media people from the Taj to the jetty and back to Taj. खतरनाक है भाई वो तो सब लोग जोर से बताओ नाम क्या है? My name is Kuldip sir. Kuldip. Happy birthday कुलदीप. Thank you everyone. Thank you. अच्छा अभी मुझे कुछ देना तेरे को दे बैक नहीं वाह चल थैंक यू पर ये तेरे को वापस तो लेके जाना सही है त्याला काय टाइम मध्ये आला असेल ना मला गिफ्ट दिला त्याने तेच फुल दिला बर्थडे गिफ्ट आता कसं द्यायचं रे दादा सर I think they've been really the backbone in organizing and getting Arjun here. So
बाकी मेन्यू में और क्या क्या बोलूँगा मैं जा रहा हूँ संभाल के तू गाना बच्चों के साथ का एक्सपीरियंस हमेशा बहुत ही फन होता है। बच्चे लोग और उनके पेरेंट्स आप प्लीज अपने अपने हमने देखा कि आपने बच्चों के साथ में एंजॉय किया, जी, डांस किया। जी। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बच्चों के साथ? यार जैसे मैंने कहा जब यहाँ आना होता है तो सोच के आते हैं ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन आप जब एक बार आते हो ऐसी जगह आप बच्चा ही बन जाते हो खुद, आप घुल मिल जाते हो, यू फॉरगेट योर वरीज, यू फॉरगेट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, और अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगती है, ज़िंदगी के इश्यूज बहुत इररेलेवेंट लगते हैं, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है जेन्युइनली। दीज किड्स लाइक वन ऑफ देम सेड उसका बर्थडे था आज, अगर मैं किसी के जन्मदिन पर उसका दिन बना पाऊँ या उसका साल बना पाऊँ, for me that's equivalent to the greatest achievement out on box office also, because that is what we work for, right? हम जब फिल्म करते हैं हम चाहते हैं कि हम किसी के दिल को छू जाए, हम किसी फैमिली को कनेक्ट करें, हम किसी इंसान से बात कर पाएँ, और आज मुझे वो मौका मिला है इतने सारे बच्चों के साथ करने का, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड यार कभी कभी बिजी शेड्यूल की वजह से ये सब होता नहीं है हमसे, तो मैं खुश हूँ कि आज टाइम मिला और टाइम निकाल के हम लोग यहाँ आ पाए। अर्जुन जी, जैसा कि आपने भी थोड़ी बहुत बात की, CPP के जरिए जो भी बच्चे आते हैं, जी। जो भी लोग आते हैं, उनका काफ़ी ध्यान रखा जाता है एंड 99% उनके ट्रीटमेंट भी अच्छे जी, होते हैं। लेकिन जी। इसके अलावा हम देखते हैं, जैसा कि आपने भी थोड़ी बहुत बात की, बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच देखिए अफसोस तो है कि पॉपुलेशन इतनी है, डिजीजेस इतने हैं, सिचुएशन ऐसी है कि हम कितना भी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं और करने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम ट्राई करना छोड़ें। हमारा फ़र्ज़ है एज इंसान जितना हम कर सकते हैं किसी और के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, टू गिव देम अ बेटर लाइफ। आई थिंक वो एस्पिरेशन तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली एज अ नॉर्मल पर्सन मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे एसोसिएशंस हैं, ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को अपने से बढ़कर मानते हैं और उनकी तरफ काम करें सालों से। आज अगर आप देखें तो उन्होंने कहा 25 साल से ये चलते आ रही है, ये रीत जो है 25 साल किसी को देना, एक डिजीज़ को बैटल करने के लिए देना बहुत बड़ी चीज़। मेरी उम्र 34 है, तो आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट मेरी पूरी उम्र बीती है इन लोगों के काम में। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड वी शुड ट्राई एंड सी द पॉजिटिव। अभी देखिए नेगेटिविटी तो दुनिया में हर जगह फैली है, हमें पॉजिटिव पे फोकस करना चाहिए, और ऐसे दिन जब आते हैं तो यू रियलाइज द पावर ऑफ गिविंग पीपल होप, फेथ एंड बिलीफ। खैर अगर बात की जाए तो बच्चों से बात कर काफी इमोशनल भी नजर आए, लेकिन खैर उसके साथ साथ टिप्स दे रहे थे आप बच्चों को। मैं कौन होता हूँ टिप्स देना? यार देखिए व्हेन यू मीट किड्स ना, यू टू रियलाइज कि आज की जनरेशन, और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, बट जेन्युइनली टुडेज जनरेशन इज़ वेरी फास्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत सॉर्टेड है। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, हमारे टेलीविज़न, न्यूज़ द्वारा उनके पास वो सब इन्फॉर्मेशन है जो जब हम शायद 10-12 साल के थे हमें इतना नहीं पता था दुनिया में क्या हो रहा है या दुनिया में कैसे आगे बढ़ रही है दुनिया। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंट्यूटिव, वो हमेशा समझ जाते हैं किसी की नीयत साफ़ होती है नहीं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू फील लाइक अ चाइल्ड विद देम। यू नो वी टेक अ प्रोफेशन वेरी सीरियसली, हम एक्टर है और हम रेड कार्पेट करेंगे और हम ये करेंगे और वो होगा और पिक्चर है, शूटिंग। कभी कभी वो सब छोड़ के जब मौका मिलता है कि यू कैन जस्ट बी, एंड इवन दो ऑल ऑफ यू ऑल वर देयर, आई कुड स्टिल एंजॉय माई सेल्फ, और मैं मस्ती मजाक कर पा रहा था और मुझे मज़ा आ रहा था, उनको भी आ रहा था, इसीलिए आपको भी शायद आ रहा था, तो आई वाज जस्ट हैप्पी बीइंग हियर। ओके अर्जुन जी, इनका जो है very fast throughout the country. Maybe, so what do you feel like, the lifestyle, the eating style? यार अभी lots of things. अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, इट्स अ डिजीज दैट नोबडी हैज़ एन आंसर और अ क्योर फॉर। इट्स नॉट वन काइंड ऑफ कैंसर, इतने तरह के कैंसर है, इतने पहलू है इनको लेके। मेडिकली अगर बात करें तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही कोई आम आदमी होगा। जो डॉक्टर्स है वो इतने सालों से लगे हुए हैं। देखिए ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक पॉजिटिव नतीजा भी निकलता है, डिजीज़ होने के बावजूद लोग लड़ पाते हैं। आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री में देखिए चिंटू अंकल वापस लौट के आए हैं, मैं उनसे मिला था जब वो न्यूयॉर्क में भी थे। तो एक होता है, यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट बिलीफ एंड फेथ कि आप सर्वाइव कर सकते हो, यू कैन फाइट इट। एंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स किस मोमेंट पे पकड़ी जाती है डिजीज़, पर किस वजह से होती है उसके सैकड़ों कारण हैं। कई लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी निभाते हैं, फिर भी जेनेटिकली अगर उनकी किस्मत में होता है या फिर बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस देयर बॉडी इज़ नॉट एबल टू कॉम्बैट इट। इट्स अनफॉर्चुनेट। अभी बच्चों को देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा, लेकिन अफसोस है कि होता है।
हल ढूंढ सकते हैं, हम जड़ तक पहुंच के उसको काट नहीं सकते बिकॉज वो हमारी औकात नहीं है, बट डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग एंड आई एम होपफुल फ्यूचर जनरेशन्स को इस डिजीज़ के बारे में उतना नहीं सोचना पड़ेगा जितना इस जनरेशन को डरना पड़ा और सोचना पड़ा। सर अगर अर्जुन जी, इसके बात अलावा की जाए तो- एक जो अच्छी खबर आई है आपके दोस्त रणवीर सिंह के लिए, उनकी जो फिल्म हाँ, इसके जी। अलावा गली बॉय जो जी है, जी जी, उसके में उनका टाइम आ गया। उनका टाइम आ गया जी। हाँ। जो पूरी तो टीम है, जोया गली को, बॉय- रणवीर को, आलिया को, सिद्धांत चतुर्वेदी, काल्की, रितेश, फरहान, ऑल ऑफ देम आई थिंक। देखिए, जब कोई फिल्म इंटरनेशनल पैगाम पे भेजी जाती है तो वो पूरे कंट्री के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है टू बी एबल टू सपोर्ट। और पिछले साल देखिए सैकड़ों अच्छी पिक्चरें बनी। अगर हम बैठेंगे और चर्चा करेंगे तो ऑब्वियसली किसी के कुछ फेवरेट्स होंगे, किसी के कुछ। जोया की फिल्म चुनी गई है, वी शुड ऑल सपोर्ट इट एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। मीडिया ने भी प्यार दिया उस फिल्म को, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया, एंड आई एम हैप्पी दैट फिल्म्स लाइक गली बॉय आर ऑल्सो डूइंग वेल इन टुडेज जनरेशन, विच गिव्स होप टू पीपल जो शायद कमर्शियल सिनेमा इतना नहीं देखते पर अलग तरह के सिनेमा देखना पसंद करते। उनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि अगर गली बॉय ऑस्कर्स के रेस में जुड़ सकती है तो किसी भी तरह की फिल्में इवेंचुअली आगे बढ़ के इंटरनेशनली दे कैन ब्रेक आउट। सो इट्स फैंटास्टिक। आई मीन द फिल्म वाज अप्रिशिएटेड इन बर्लिन, आई थिंक रिसेंटली मेलबर्न में अवार्ड जीता। मैं था वहाँ पे जोया के साथ फेस्टिवल में। तो बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन काम किया सबने। पर मैं चाहूँगा ये फिल्म को वी ट्रीट इट एज समथिंग दैट इज़ इंडियन एट हार्ट। इवेंचुअली उसने जो कहानी बनाई है वो देसी लोगों की ही कहानी है, चाहे वो बड़े शहर की कहानी हो। हम हमेशा कहते हैं छोटे शहर की कहानी देसी होती है। मुंबई शहर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, और जहाँ से मुराद उभर के आता है रणवीर का कैरेक्टर, वो हिंदुस्तान की एक रियलिटी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि गली बॉय को प्रशंसा मिली और उसके साथ साथ ये हुआ है उसके साथ, एंड आई होप इट विंस। आई थिंक वी शुड ऑल होप इट विंस। लगान के बाद आई थिंक ये पहला नतीजा जहाँ पे हमको लग रहा है कि एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है दैट गली बॉय कैन पेनिट्रेट इनटू द ऑस्कर। सो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। अर्जुन, अगर बात की जाए पानीपत पानीपत यार, शूटिंग खत्म हो चुकी है। पानीपत वी आर डन शूटिंग। आई एम इन फैक्ट डन विद मोस्ट ऑफ द वर्क आई हैड इवन ऑन द डब। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत खुश हूँ। संजू सर के साथ काम किया, कृति के साथ काम किया, पद्मिनी कोल्हापुरी, मुनीश बैल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक वो एक कहानी ऐसी है जो हम सब ने ये वर्ड सुना है, ये शब्द सुना है, ये जगह जानते हैं पानीपत, वो जंग के बारे में सुना है, लेकिन हमको पता नहीं कि ये जंग क्यों हुई, कैसे हुई, क्या बाधाएं थी, क्या पॉलिटिक्स थे उस समय पे, किस तरह जब अफगानी आ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ तो कैसे एक विराट बलशाली हिंदुस्तानी सेना को एकजुट होकर लड़ना पड़ा था। और वो कैसे बनी थी सेना उस समय, जब मुग़ल भी थे, जब मराठा भी थे, जब हर तरह की कम्युनिटीज़ थी, हर तरह के लोग मौजूद थे हिंदुस्तान में, और तब ब्रिटिशर भी नहीं आए थे। तो एक बहुत नाजुक टाइम था हिंदुस्तान में। और जब ये वॉर इवेंचुअली हुई, किस कारणों से हुई और किस कारणों की वजह से कुछ चीज़ें तो आज तक कॉन्सिक्वेंसेज उसके देखे जा रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि मराठा वैलर पे आज तक कोई फिल्म बनी नहीं है जो एक्चुअली जेन्युइन, आई मीन बाजीराव मस्तानी वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म, आई लव्ड इट। इट वाज मोर अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म, यू नो, जहाँ पे हम 3 कैरेक्टर्स के थ्रू जी रहे थे। पानीपत डील्स आई थिंक मोर विद the valor of the Maratha community and how they actually were at that point in time the leaders of making sure that we took on the Afghans. So it's a very important story. आशु सर बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत ही डिटेल के साथ ये फिल्म बनाई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आएगी दिसंबर 6 को लगने वाली है, लोग फिल्म की जो जेन्युइननेस है, जिस तरह से उन्होंने एफर्ट डाल के बनाई है, लोग उसे अप्रिशिएट करें। It's a difficult film, you can say. That's a very Of course, every film is difficult. Obviously, पीरियड में ये नतीजा मुश्किल ही होता है कि आप कहीं ना कहीं यू वांट टू बी ऑथेंटिक ऑल्सो, बट एंटरटेन भी करना पड़ता है। और मेरी लुक की वजह से मुझे और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था, क्योंकि आप सबको टोपी पहना रहा था और खुद भी टोपी पहन रहा था 9 महीने के लिए। 9 महीने में लोगों के बच्चे हो जाते हैं। मेरी फिल्म की शूटिंग खत्म हुई थी, बट आई होप इट पेज ऑफ यार। एट द एंड ऑफ द डे आई हैव जस्ट ट्राइड टू बी ऑनेस्ट एंड वी ऑल हैव, फिंगर्स क्रॉस्ड। अर्जुन जी, जाते जाते ये मैडम ने जो नोटिस की है कि ये 50 ईयर, आपने 25 बोल दिया तो थोड़ा यस, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम। 50 साल जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत बड़ी चीज़ है। 50 years इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। They have been doing this successfully, looking after patients, looking after kids, making sure that there is positivity. So big congratulations, and I'm very thankful कि मुझे यहाँ पे आने का भी मौका दिया इन्होंने। Done. Thank you guys. We have to run. सीक्वल फिल्मों बनाने का ट्रेंड चल रहा है जी। और आपके होम प्रोडक्शन से नो एंट्री की काफी बात यार देखिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सीक्वल हो या रीमेक हो या एक बुक हो या अडेप्टेशन हो, ये सारी सैकड़ों जो पहलू है ये अब हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हम ऑफिशियली कर सकते हैं। पहले अगर देखें तो अनऑफिशियली काफ़ी होता था, अब ऑफिशियली हो सकता है। और आज क्या न्यूज़ बहुत सिंपल हो गई है। आज डिजिटल पे आप इन्फॉर्मेशन डालिए तो वो आप तक पहुंच जाएगी कि ये किताब चुनी गई है या ये रीमेक चुनी गई है।
पहले भी सालों से आता, मुझे याद है माई डैड यूज टू रीमेक फिल्म्स, अनिल चाचू डन रीमेक्स और पिक्ड अप स्टोरीज दैट वर मेड इन अदर लैंग्वेजेस एंड डन देम इन हिंदी। जैसे राम गोपाल वर्मा की शुरुआत एक्चुअली वहाँ से हुई थी, फिर यहाँ आए थे, तो ऐसे सैकड़ों बार हो चुका है। कई सारी फिल्में, जैसे माई डैड मेड अ फिल्म कॉल्ड हमारा दिल आपके पास है, जुदाई, सो मेनी फिल्म्स इवन बैक इन द डे यूज्ड टू बी अडैप्टेशंस। सीक्वल्स का दौर नया है बिकॉज आई थिंक अब ऑडियंस तैयार है सीक्वल्स के लिए, यू नो दे लाइक टू सी वो कैरेक्टर हमको पसंद था, आगे और कहानी इसकी क्या है बताइए। तो ऑडियंस इज नाउ मोर अवेयर ऑफ द वेस्टर्न वे ऑफ वॉचिंग फिल्म एंड कंज्यूमिंग फिल्म्स, तो हमारे लिए थोड़ा आसान है। कुछ हमारे भी कैरेक्टर्स अवेंजर्स जितने बड़े बनेंगे, बाहुबली के सीक्वल को देख लीजिए कितना, तो इट्स अ गुड थिंग ना। इट्स एज लॉन्ग एज, मेरा ये मानना है अगर आप टिकट का पैसा खर्च करके थिएटर में आके हमारी पिक्चरें देख रहे हो तो हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, बस घर पे पायरेटेड मत देखना। क्या अपडेट है कुछ? थैंक यू। डिलीट कर दूंगा ना वो। जो भी इधर ही कुछ नहीं। हाँ बस मतलब बोला भी है उनको कुछ नहीं। यहाँ से फिर वापस बस में वापस किधर बस में? पूरा उधर वापस अर्जुन का पूरा आएगा ना? 5 में। हाँ वापस जाएंगे। अपने कुछ नहीं है ना उधर। नहीं अरे हम लोग बाइक उधर के मेरा ना। लाइट तुम्हारा काम करेगा। लाइट मारना कौन है? सीलिंग तक दिखेगा। अपना एक बार दिख सकता। भाई येलो लाइट भाई एक साइड लेना भाई। अरे महेश का कैमरा महेश कैमरा आ रहा है ये महेश वीडियो महेश पूरा वो आ रहा है पीछे से लाइट आ रही है। अरे भाई ऊपर है और नीचे का कैमरा तेरा ये आ रहा है। बैठने जगह नहीं मेरे को, थोड़ा जगह दो। अरे चाचा अरे भाई सदाब अरे सब जगह आ गया। अरे पूरा व्हाइट लाइट मार दादा आपका फ्लैश नीचे करना है यार। सदाब अरे सब देख लो, इन लोग भी आ गए आ ना मेरा कैमरा। तू भी आ, येलो वाला बंद करो। चलो छोड़ो। अर्जुन सर यहाँ जिनका हो गया वो पीछे आ जाओ। अर्जुन सर अरे मिल गया तो ऑटो ना पीछे हट जाओ भाई। अर्जुन सर इधर अर्जुन सर स्ट्रेट अरे इधर ही आ गया तो।
जा भी नहीं रहा है। चलो चलो बाबा बस अभी हो रही है चलो